Good afternoon, children. Good afternoon, parents. How are you all? Fine? Yes. So, children, again, same online have started. Yes? Yes or no? Okay. So, अभी वापस से सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? Yes, children. So be safe. Don't go outside. While going outside, wear your mask and do sanitize properly your hand. Okay, and don't touch anywhere. Okay. So now your final exam also will come on 15th April. Yes or no? So for that you have to prepare before. आपको क्या करना है? फाइनल एग्जाम आ रहा है अभी. फ्रॉम नर्सरी नाउ यू विल गो टू जूनियर केजी. यस और नो? आप अभी बड़े हो रहे और यस फ्रॉम नर्सरी. आप पहले अभी नर्सरी में थे, नर्सरी से अभी आप ऊपर जाओगे, एक स्टेप ऊपर जूनियर केजी में जाना है ना आपको. जूनियर केजी में यस. सो फॉर दैट यू हैव टू स्टडी वेल. यस. So what you will do? You have to prepare very well. English, maths, जो भी टीचर सिखाती है आपको क्या करना है. टीचर जो भी रिवीजन दे रही, you have to complete in your book and you have to show to your teacher. Okay. Many of the children still not paying attention. Still they are not doing revision well. So children, it will be create problem in your study. You have to do proper well. Okay. So children, today we will do revision of story from book number 5 as a revision. Okay. Last time हम लोग ने story लिया था from book number 6 and we have completed our portion. So today we will take both the story from both the book. Okay. आज हम लोग क्या करेंगे? दोनों बुक से स्टोरी का रिवीजन करेंगे. आपको क्वेश्चन पेपर तो सेंड हुआ है इन ग्रुप. यस और नो? आप शायद पूछ सकते हो आपके पेरेंट्स को कि क्वेश्चन पेपर सेंड हुआ है, क्वेश्चन क्या क्या ओरल एग्जाम में आने वाला है, पोएम, स्टोरी. यस और नो? So there are 8 story. There are 8 poem. How many poem? 8 poem. From 8 poem you have to say any one poem. Okay. आपको कितना पोएम है टोटल दोनों बुक में से? 8. How many? 8. From 8 poem you have to do any one poem but with action. आपको क्या करना है? ओरल एग्ज़ाम के लिए 8 पोएम में से कौन सा भी जो आपको आता है, जो इजी लगता है आपको, वो प्रिपेयर करना है. सेकेंड थिंग्स इन स्टोरी. यस. इन स्टोरी व्हाट यू हैव टू डू? देयर आर 2 stories. फ्रॉम बुक नंबर 6 देयर इज 1 story and from book number 5 देयर इज 1 story. टोटल 2 stories there. Yes or no, children? Say yes. Okay. So from both the story you have to do any one from them. Okay. दो स्टोरी है. बुक नंबर 5 में से एक स्टोरी एंड बुक नंबर 6 में से एक स्टोरी. टोटल कितनी स्टोरी हुई? 1 and 2. Yes or no? Yes. So children, from both the story you have to choose any one of them. Whichever is easy, whichever you like very most, that story you have to do well but full. आपको ऐसे नहीं. लास्ट टाइम इन ओरल एग्जाम आई हैव सीन many of the children just saying one line, that's it. No. You have to say 3 or 4 lines at least. आपको 3-4 लाइन एटलीस्ट आपको ट्राई करना है, क्योंकि अभी आप नेक्स्ट टाइम
हायर क्लास में जाओगे जूनियर केजी में तो वहाँ पे भी आप एक लाइन बोलोगे? नो. सो यू हैव टू डू एटलीस्ट वन पैराग्राफ और एटलीस्ट फुल स्टोरी बट विथ एक्शन. ओके. Okay children, come on. Now remove your book children. Book number 5. Book number 5. Remove first book number 5. Okay, remove. So what is our today's date? 12/4/2021. Subject story. Revision. Book number 5. Which story? The grasshopper and the ant. Which story? The grasshopper and the ant. Okay. So just I have written here moral. डायरेक्ट मोरल नहीं बोलना है, तो क्या करना है? पहले स्टोरी हम लोग रिवाइज करेंगे. ओके, कम ऑन. से माय स्टोरी नेम इज द ग्रासहॉपर and the ant. The grasshopper and the ant. Here to say after me. Okay, so on a hot summer day, a grasshopper was playing and singing. He called out to an ant who was passing by to join him in his game. The ant was busy. The ant was busy carrying phone to her and hill. This was understood children? Yes or no? Yes. Next line. She said I am helping my friends to store food for the winter. Very good. You should do the same. Okay. Next line. Keep your finger to the next line. Very good. The grasshopper was not interested. He said, why should I worry about the winter? There is plenty of food around. Let me enjoy today. And continued to play. And continued to play. Soon winter came and everything was frozen on the ground. The grasshopper could not find any food and was dying of hungry.
dying of hungry. He saw the ant enjoying their food. The ants offered him food and a warm place to stay. The grasshopper understood his mistake and was thankful to the ants. Moral of the story: work hard today and you can ripe the benefits बोलो, benefits tomorrow. Say, work hard today and you can reap the benefits tomorrow. Okay, children? So children, what do you understand from this story? The grasshopper and the ant. Do you understand something? What grasshopper was doing? He was playing and singing. क्या कर रहा था वो? खेल रहा था और गाना गा रहा था. He called out to an ant. उसने किसको बुलाया? ant को बुलाया. पर ant क्या कर रहा था? वो वहाँ से पास हो रहा था. और grasshopper क्या कर रहा था? He was playing and singing. What he was doing? See, he is playing and singing. Okay. Was passing by to join him in his game. What grasshopper have told to ant? That join with me, we will play a game. The ant was busy. But ant was busy. Ant क्या था? Busy था. क्यों busy था वो? क्या कर रहा था? कॉर्न. स्वीट कॉर्न पता है आपको? यस. सो वो दोनों फ्रेंड्स क्या कर रहे थे? एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे. और वो क्या कर रहे थे? कॉर्न लेके अपने घर की तरफ जा रहे थे. दैट इज कॉल्ड एंट हिल. इसको क्या बोलते हैं? एंट हिल. छोटी छोटी मूंगियाँ रहती है, उनका घर रहता है. उन लोग क्या करते हैं? मड के अंदर घर बनाते छोटा छोटा. यस, सी लाइक दिस वे. सो दे स्टे हियर. She said means ant. Ant said to the grasshopper, I am helping my friend. What he is telling? I am helping my friend to store food. क्या कर रही थी वो? बारिश का सीज़न आने वाला था. यस, सेम अभी गर्मी का सीज़न चालू है, तो सेम स्टोरी में भी गर्मी का सीज़न चालू है. फिर नेक्स्ट कौन सा सीज़न? रेनी सीज़न. तो वो क्या कर रही थी? कॉर्न लेके स्टोर कर रहे थे. हम लोग भी पहले से सब स्टोर करके रखते घर पे. यस और नो? सेम लाइक दिस वे एंड ऑल्सो डूइंग सेम. आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड टू स्टोर फूड फॉर द विंटर. यू शुड डू द सेम. एंड क्या बोल रही ग्रासहोफर को? कि मैं जो कर रही हूँ वैसे ही सेम आपको भी करना ज़रूरी है. द ग्रासहोफर वॉज नॉट इंटरेस्टेड. ग्रासहोफर को इसमें इंटरेस्टेड था नहीं था. वो किसमें बिजी था? खेलने में और गाना सुनने में. ही सेड, वाई शुड आई वरी?
ग्रासहोफर ने क्या बोला एंट को कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं है। वाई शुड आई वरी, यानी मैं क्यों इस बात का टेंशन लूँ। अबाउट द विंटर, यानी जो नेक्स्ट सीजन चालू होने वाले उसका मैं क्यों टेंशन करूँ। देर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड अराउंड, वॉट ग्रासहोफर वॉज टेलिंग टू एंट, कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारा फूड है, मेरे बाजू में बहुत सारा फूड है। लेट मी एन्जॉय टूडे, वो क्या बोल रहा था ग्रासहोफर एंट को कि मेरे को आज एन्जॉय करने दो, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग। एंड कंटिन्यू टू प्ले, यानी उसने क्या किया, जो स्टॉप किया था खेलने का उसने क्या किया, कंटिन्यू किया। सून विंटर केम, जल्दी से विंटर का सीजन चालू हो गया। एंड एवरीथिंग वॉज फ्रोजन ऑन द ग्राउंड, सब कुछ पानी की वजह से सब कुछ क्या हो गया, फ्रोजन हो गया। द ग्रासहोफर कुड नॉट फाइंड एनी फूड, ग्रासहोफर को कुछ भी फूड नहीं मिला। और वॉज डाइंग ऑफ हंग्री, और उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने पहले से कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा था और उसको क्या हुआ, जोर से भूख लगी। वॉज डाइंग ऑफ हंग्री, ही सॉ द एंट एंजॉइंग देयर फूड, ग्रासहोफर ने फिर एंट की तरफ देखा और उसने क्या सोचा कि एंट तो मस्त मज़े से खा रहा है और उसने पहले से स्टोर करके रखा है। द एंट ऑफर्ड हिम फूड, एंट ने क्या किया तो भी ग्रासहोफर को खाने का ऑफर किया। हम लोग भी कभी कभी देते ना किसी को, यस, तो सेम तरीके से एंट ने भी ग्रासहोफर को ऑफर किया। एंड वॉन्ट प्लेस टू स्टे, द ग्रासहोफर अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, ग्रासहोफर को उसका मिस्टेक समझ में आया। एंड वॉज थैंकफुल टू द एंट, और उसने क्या किया, एंट को थैंक यू बोला। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वर्क हार्ड टुडे, यानी एंट ने जैसे वर्क हार्ड किया सेम हम लोग को भी एंट के जैसे बनना है। वर्क हार्ड टुडे, यू कैन ड्राइव बेनिफिट टुमारो। ओके चिल्ड्रन, you understood this story? Yes, now I am roughing this board. Okay, and now we will do from book number 6. Till then remove book number 6, children. Keep book ready. Yes, children. So did you remove your book number 6? Yes. Did you remove book number 6? Yes or no? We have completed from book number 5. Yes. Do you have any doubt from book number 5? The grasshopper and the ant. Yes. It is very easy and it is very simple story. Yes. Okay. Now remove book number 6. Remove book number 6, children. Very good. Page number 40. Remove page number 40. Say, my story name is The Thirsty Crow. The Thirsty Crow. What is our story name? Say, everyone. Very good. The Thirsty Crow. See, here I have written book number 6. The Thirsty Crow. Thirsty crow means what, children? Thirsty means हम लोग को प्यास लगती है. Yes, we need water. Yes, simple way. Crow also was very thirsty. He was searching here, where, everywhere he was searching the water. But at the end he got water. Okay, and now we will see in the story what is there. Okay, first of all we will read and then I will explain you and then we will end our portion. Okay, say, my story name is
the thirsty crow. It was hot summer day. ये स्टोरी में भी क्या था? हॉट समर डे था. ओके. A crow had been flying in search of food all morning. He was very tired and thirsty. He was very tired and thirsty. He came across a pot of water. He came across a pot of water outside a house. He flew down to the pot. But there was very little water in it. The crow tired to push his head into the pot. Sadly, he found that the neck of the pot was too small. The crow was clever and thought of an idea. He picked up stones. Lying around and dropped them one by one into the pot. Slowly the water came up. To the brim. The clever crow drank it and fly away. Moral of the story. Common sense can solve any problem. Okay. So children, what do you understand from this, from thirsty crow? Come on, anyone? No one? Anyone can tell me? I will give them star mark. Very good. The thirsty crow. Okay. So it was hot summer day. क्या था? गर्मी का सीजन चालू था. The crow had been flying. Crow क्या कर रहा था? Fly कर रहा था. In search of food. यहाँ पे भी क्या कर रहा है? Crow सर्च कर रहा है. क्या कर रहा है? In a search of food. यानी उसको भूख लगी है तो खाने के लिए ढूंढ रहा है. In a all morning. यानी हर सुबह वो उड़ते खाना, भूख लगती तो हम लोग कैसे खाना खाने के लिए ये करते, मम्मी खाना दो भूख लगी है,
तो सेम क्रो क्या कर रहा था, हर मॉर्निंग, रोज मॉर्निंग फ्लाई करते करते यहाँ वहाँ देख रहा था कि कहाँ मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो क्या था, पूरा थक चुका था। हम लोग भी थकते हैं ना, यस, सेम वे क्रो भी थक चुका था। एंड थर्स्टी, वो क्या था, हर सुबह उड़ते उड़ते वो खाना देखने के लिए वो जा रहा था कि कहाँ पे मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। पर एक दिन उसको कुछ भी नहीं मिला और वो बहुत एकदम थक चुका था। एंड ही वॉज थर्स्टी, और उसको क्या लगा था, बहुत प्यास लगा था। ही केम अक्रॉस अ पॉट, यानी वो एक पॉट की तरफ आ चुका है। ही केम अक्रॉस अ पॉट ऑफ वाटर, वो क्या कर रहा था, उड़ते उड़ते एक पॉट की तरफ आ गया। आउटसाइड अ हाउस, यानी एक घर है, घर के बाहर एक पॉट है। सी लाइक दिस वे, हियर इट इज हाउस एंड आउटसाइड देयर इज मड ऑफ water. Outside the house, he flew down to the pot. वो क्या कर रहा था, उड़ते उड़ते वो पॉट की तरफ बैठ चुका है। He flew down to the pot. Flew down means वो उड़ते उड़ते वो पॉट की तरफ बैठ गया। But there was little water in it, यानी वो पॉट के अंदर बहुत कम पानी था। The crow tired to push his head, यानी उसको प्यास लगी थी, वो थक चुका था खाना देखने के लिए इधर उधर हर मॉर्निंग पे। यस, फिर उसने एक पॉट की तरफ आके वो बैठ गया और उसने जैसे ही पॉट के अंदर देखा तो पानी बहुत कम था, एकदम नीचे था। और पॉट का ये क्या था, नेक बहुत स्मॉल था। तो उसने क्या किया, उसने ट्राई किया कि अपना जो नेक है वो पॉट के अंदर डाल के पानी पियो, पर उसको कुछ पानी नहीं मिला। द क्रो टायर्ड टू पुश हिज हेड इनटू द पॉट सैडली, यानी वो नाराज हो गया। ही फाउंड दैट द नेक ऑफ द पॉट वॉज टू स्मॉल, फिर उसको देखते देखते ही पता चल गया कि जो पॉट का जो मुंह है वो बहुत छोटा है। द क्रो वॉज क्लेवर, बट क्रो क्या था, होशियार था। एंड थॉट ऑफ एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आई। ही पिक अप स्टोन, उसने क्या किया, जो नीचे उसने देखा कि नीचे की तरफ सब स्टोन से। ही पिक्ड अप स्टोन्स, उसने क्या किया, स्टोन उठाया। लाइंग अराउंड एंड देम एंड ड्रॉप देम वन बाय वन इनटू द पॉट, उसने क्या किया, जो पॉट के बाहर छोटे छोटे पीसेस के स्टोन्स थे, उसने क्या किया, अपने बीक यानी चोंच, जो अपनी बीक है उस पे उसने स्टोन एक एक करके उठा के पॉट के अंदर डालना शुरू किया। वन बाय वन इनटू द पॉट, स्लोली द वाटर केम अप, पानी के अंदर हम लोग कुछ डालते हैं तो पानी ऊपर आता है। यस, slowly the water came up to the brim and the clever crow drank it and flew away. उसने क्या किया, स्टोन डालने के बाद पॉट में से जो पानी था वो धीरे धीरे ऊपर आया। जैसे वो ऊपर आया वैसे क्रो ने क्या किया, पानी पिया और वो उड़ के चला गया। सो व्हाट इज आवर मोरल ऑफ द स्टोरी? कॉमन सेंस कैन solve any problem, यानी we have to use our brain, we have to be clever like a crow. Yes, so common sense can solve any problem. Okay children, you understood this story? Yes, so children, all the best for your written exam and for your oral exam too. Okay, so be prepared for English, Maths and do well your study. All the best. Take care. Be safe. Have a nice day.